Hi everyone, this is Kushagra, a UPSC EPFO 2017 batch enforcement officer. Through this video, I'll be sharing with you a few insights regarding the upcoming EPFO enforcement officer exam 2020. इस वीडियो को हम चार पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. In the first part, we'll see the job profile of an enforcement officer. Then in the second part, we'll see the previous year paper, and along with that, we'll have a look on the syllabus as well. Then in the third part, we'll just formulate a strategy to not just prepare but also clear this exam. Then in the final part, we'll see what interview is and what it is not. Now starting with the first part, to understand the job profile of an enforcement officer, we first need to understand कि आखिर EPFO का काम क्या है. EPFO एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 के अंडर बनी हुई एक स्टैट्यूटरी ऑटोनॉमस बॉडी है. ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आती है. EPFO वर्कर्स और उनकी फैमिलीज को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करती है. सोशल सिक्योरिटी इज अ फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल एड जो वर्कर्स को न सिर्फ अपने रहते हुए और उनके अनफॉर्चुनेट डेथ के केस में भी उनकी फैमिली को फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता है. EPFO ये सोशल सिक्योरिटी तीन स्कीम्स के थ्रू प्रोवाइड करता है. द फर्स्ट वन इज Employees Provident Fund Scheme 1952. The second one is Employee Deposit Linked Insurance Scheme 1976, and the third one is Employees Pension Scheme 1995. तो ये तीन स्कीम्स प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस एंड पेंशन, इनके थ्रू EPFO इंश्योर करता है कि वर्कर्स को न सिर्फ उनके रहते हुए उनके PF एक्यूमुलेशंस का बेनिफिट मिले, इवन उनके इन केस ऑफ एन अनफॉर्चुनेट डेथ और परमानेंट डिसेबलमेंट उनकी फैमिली को भी एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके. इसमें एनफोर्समेंट ऑफिसर का रोल क्या है? EPFO में एनफोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट्स ऑफिसर आर टू पैरेलल पोस्ट्स. व्हेन यू गो आउट इन द फील्ड यू वर्क एज एन एनफोर्समेंट ऑफिसर. वहां पे यू हैव टू एंश्योर कंप्लायंस, यू हैव टू check the records of the establishments, you have to work as an assistant public prosecutor as well when the case of EPFO is presented in any court. Then आपको वर्कर्स और एस्टैब्लिशमेंट्स के बीच में अवेयरनेस भी प्रोवाइड करनी होती है एज एन एनफोर्समेंट ऑफिसर. नाउ व्हेन यू वर्क एज एन अकाउंट्स ऑफिसर, इट इज अ डेस्क जॉब. इन द ऑफिस यू कैन बी गिवन एनी सॉर्ट ऑफ वर्क रेंजिंग फ्रॉम द चार्ज ऑफ पेंशन टू लीगल सेल to say cash section, and for that matter any work related to running of the office in a smooth manner depending upon your capability and administrative requirement. So at a single time you will be either posted as an enforcement officer or as an accounts officer. This transition happens within a period of say 1 or 2 years depending upon the administrative requirement. So to understand the diverse nature of this particular post, you can understand that EPFO has within its ambit different sorts of industries ranging from mining, cement industry, hotels, hospitals, universities, theaters, restaurants, schools, and any other organization having 20 or more than 20 number of employees. So the posting of an enforcement officer is only in urban cities and districts. Your salary depends upon your place of posting, as the HRA varies in cities X, Y and Z. So your initial in-hand salary will vary between 55,000 to 65,000 per month. This will increase by the time you come to join EPFO in 2021. However, there are several other allowances and contributions by the government as well, like the NPS, in which 10% is being contributed from your salary and 14% is being contributed by the government. Then there are allowances like newspaper allowance, briefcase allowance, etc. Now let's take a broad overview of the organizational structure of EPFO. The head office of EPFO is in New Delhi, Bikaji Kama Place. Below the head office come the zonal offices, which are 21 in number and spread across states all over India. Under the zonal offices come the regional offices, which have control of a few districts in the region. For instance, Haryana has 4 regional offices, one in Faridabad, the other in Gurgaon, then one in Rohtak and the last one in Karnal. Under the control of regional offices are district offices. District offices are
established where there is a considerable concentration of employees and employers, so as to ensure that regional offices are able to maintain the compliance of the EPF and MP Act. Now, after understanding the organizational structure, we need to understand the hierarchy within the organization. You will be starting as an enforcement officer or an accounts officer, above which are the assistant commissioner. The assistant commissioner or APFC are group A officers. Above the assistant commissioners are regional commissioner grade 2, then regional commissioner grade 1. Regional commissioner grade 1 is usually the OIC or officer in charge for each regional office. Then above the regional commissioners are the ACC or the assistant central commissioners. These ACCs are the in charge of zonal offices, which, as I said, are 21 in number and spread across all over India in different states. So above the ACCs are ACC HQ, that is ACC headquarters, who are mostly placed in the head office. Then above the ACC headquarters is the Central Provident Fund Commissioner, the CPFC, who is mostly an officer of an IS cadre. So in EPFO, you will be getting a different cadre depending upon your merit and preference. Like my cadre is Haryana, and till I am on the post of an enforcement officer, I will be transferred within Haryana. And on the first promotion, I will be getting into assistant commissioner post, and after coming in group A, I will be liable for transfer all across India. Now, regarding the nature of work in practice, EPFO is currently undergoing digital and technical transformations. This provides you ample opportunities to utilize your capabilities up to the best of your levels. तो इस काम में यूजुअली पब्लिक डीलिंग थोड़ी कम होती है. एज एन एनफोर्समेंट ऑफिसर यू विल हैव टू डील विद द पब्लिक, द एम्प्लॉयर्स, द एम्प्लॉयज. यू विल हैव टू गो फॉर अवेयरनेस ड्राइव्स एंड many such things. You might have to visit banks, and also you will have to visit the members for addressing and redressing their grievances. But as an accounts officer, you might not have to deal much with public. Particularly, a few people may come up to you that your claim is pending, or there are some technical or maybe other issues in their record. That's why their claim is not being processed. So for that, you will be happy to help, and that is not a regular feature in general. Therefore, this job is an easy 9 to 5:30 job, and you get enough of time before and after office to prepare for further exams, or to take out time for your extracurricular activities or hobbies as and when you like. So this also provides you an adequate work-life balance, and I'm glad to tell you that many of our batchmates have already got into Group A services, and yes, you should be aspirational about getting into better services. Now, moving to second part of the video, we'll have a look at the exam pattern, the syllabus, as well as the previous year question paper. अब you need to know your enemy before you start the fight. तो एग्जाम पैटर्न इसमें दो फेज में होता है. In the first phase, there are 120 questions with 100 marks. The second phase is interview with again 100 marks. But इन दोनों का वेटेज 75:25 होता है, यानी कि फेज 1 का वेटेज 75% है और इंटरव्यू का वेटेज 25% है. अब जो फेज 1 रिटन एग्जाम है, उसमें अगर हम देखें 120 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से 20 क्वेश्चंस सिर्फ इंग्लिश के थे और 16 क्वेश्चंस इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस के थे. थर्ड मेजर चंक वाज मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एंड द फोर्थ मेजर चंक वाज जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. तो इन चार पार्ट्स पे हमको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना चाहिए. ऑल्दो वी नीड टू नो दैट यूपीएससी कोई एक पर्टिकुलर ट्रेंड पर फिक्स नहीं रहता है, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है. अब इन चार मेजर टॉपिक्स के बाद अगर हम देखें तो प्रायोरिटी वाइज आवर नेक्स्ट फोकस शुड बी ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. रिमेंबर, हिस्ट्री में एंशिएंट और मेडिवल नहीं है, सिर्फ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल यानी कि 1857 के बाद वाली हिस्ट्री है. देन इंडियन इकोनॉमी एंड पॉलिटी, करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, फिर जनरल साइंस, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, देन सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया. तो इन पार्ट्स पे हम प्रायोरिटी वाइज इस तरीके से फोकस देंगे. ऑल्दो
वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड भी हो सकती हैं, जैसे कि हम अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो उससे हमें अपने आप पता चलेगा। अब हम इस वीडियो के थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में एक ऐसी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करने की कोशिश करेंगे जिससे हम ना सिर्फ इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें बट उसे क्लियर भी करें। तो अब आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हो या स्टेट पीसीएस के एस्पिरेंट हो या बैंकिंग सीजीएल के एस्पिरेंट हो, आप इंटेलिजेंट इतने हैं कि आप इस स्ट्रैटेजी को अपने हिसाब से मैनिपुलेट या मोल्ड कर सकते हैं। तो इसमें हम ये देखेंगे कि इस एग्जाम का लेवल जो होता है वो एसएससी सीजीएल से थोड़ा सा ऊपर होता है और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट इसलिए क्योंकि इसमें जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया जैसे टॉपिक्स सेपरेटली मेंशन्ड हैं और ठीक ठाक वेटेज के क्वेश्चंस इसमें आते भी हैं, जो कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में नहीं होता है। तो इस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा लूसेंट की जनरल नॉलेज की बुक। इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस सारे पोर्शंस की बेसिक नॉलेज आपको मिल जाएगी। रिमेंबर, हिस्ट्री में एंशिएंट और मेडिवल नहीं पढ़ना है, सिर्फ मॉडर्न इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ना है। देन आई वुड रिकमेंड कि आप एसएससी सीजीएल और यूपीएससी के सीसैट वाले पेपर्स खुद लगाएं। इससे आपका जनरल इंग्लिश का पोर्शन कवर हो जाएगा, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, रीजनिंग का पोर्शन कवर हो जाएगा। जो इस एग्जाम का लेवल होता है वो यूपीएससी सीसैट के पेपर जैसा ही होता है। यूपीएससी के पेपर 1 नहीं, सिर्फ सीसैट के पेपर्स। और इनफैक्ट एसएससी सीजीएल के पेपर्स से आपको जनरल साइंस और जनरल नॉलेज दोनों में भी काफी हेल्प मिलेगी। द अदर थिंग आई वुड रिकमेंड इज कि कोई भी करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन आप प्रेफर करिए जो फ्रीली ऑनलाइन पीडीएफ अवेलेबल भी होते हैं। बट इसमें आप मैगजीन वही रेफर करिएगा जिसमें बहुत शॉर्ट में 1 या 2 पैराग्राफ में कोई भी करंट न्यूज कवर कर रखी हो। बहुत ज्यादा इलैबोरेट डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर्स हमको फॉलो नहीं करने हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स हमको एग्जाम से ऑलमोस्ट 1 साल पहले तक के कवर करने हैं। तो हम किसी भी एक पर्टिकुलर करंट अफेयर या डेवलपमेंटल इशू में इन डेप्थ नहीं जाएंगे। फिर एक सबसे जरूरी चीज है न्यूज़पेपर। एक अच्छा न्यूज़पेपर, प्रेफरेबली हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, ये आपको डेली पढ़ना है। इससे आपको न सिर्फ करंट में फायदा मिलेगा, डेवलपमेंटल इश्यूज में फायदा मिलेगा और आपको इंग्लिश में भी फायदा मिलेगा। और देखा जाए तो इकोनॉमी में भी मोस्टली क्वेश्चंस करंट से ही आते हैं, तो न्यूज़पेपर इज अ मस्ट। और इसके अलावा इंडिया ईयरबुक, इकोनॉमिक सर्वे और बजट, इन तीनों की समरी और एमसीक्यूज मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ये आप पढ़िए और एमसीक्यूज लगाइए। इससे करंट और इकोनॉमी के पोर्शन पे, इनफैक्ट इवन पॉलिटी के पोर्शन पे आपको स्कीम्स वगैरह की जानकारी अच्छी हो जाएगी। फिर 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचते हैं, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। इन तीनों के लिए कंसोलिडेटेड मटेरियल मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है और हम लोगों के बैच में भी मोस्टली लोगों ने इंटरनेट और ऐसे रैंडम सोर्सेज को रेफर करके इन टॉपिक्स को कवर किया था। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में अगर आप 2017 का पेपर देखें तो क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक लेवल के थे। डेफिनेशंस पूछी थी लाइक डेप्रिसिएशन, लेगेसीज और इवन फुल फॉर्म पूछा था एक आईएफआरएस का। 2 न्यूमेरिकल्स भी थे जो बहुत ही बेसिक लेवल के थे, सिर्फ 2 स्टेप्स में सॉल्व होने वाले, प्रोवाइडेड आप एक बेसिक कंसेप्ट उसका समझ जाए। तो उसके लिए अगर 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी रिफर करेंगे सिलेक्टिवली, तब भी ये जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को कवर किया जा सकता है। सिमिलरली इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस में भी आपको इंटरनेट को यूज करते हुए बेसिक चीजें पढ़नी होंगी, जैसे पर्सपेक्टिव्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबर लॉज और आईएलओ के बारे में और ट्रेड यूनियंस के बारे में। और फिर इसके बाद सोशल सिक्योरिटी पे आएंगे, लेकिन इससे पहले मैं इंडस्ट्रियल लेबर लॉस और सोशल सिक्योरिटी में डिफरेंस बता दूं जो काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है। अब लेबर लॉज एक बहुत बड़ा सेट है जिसके अंदर मल्टीपल लॉज आते हैं। दे मे बी पर्टेनिंग टू से मैटरनिटी बेनिफिट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स या मिनिमम वेजेस। तो इस तरह के इंडिया में बहुत सारे लॉज हैं, लेबर लॉज, जो काफी टाइम से न्यूज में चल रहा है कि 44 लेबर लॉज को अमेलगमेट करके गवर्नमेंट 4 लेबर कोड्स में तब्दील करना चाहती है। अब ये 4 लेबर कोड्स
जो है ये लेबर लॉज का एक ट्रांसफॉर्म्ड शेप होगी। तो इनमें कौन कौन से लेबर कोड्स हैं? वेजेस का हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशंस का हो गया, इंडस्ट्रियल वेलफेयर का हो गया, यानी इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड वेलफेयर। फिर चौथा है सोशल सिक्योरिटी। तो सोशल सिक्योरिटी इज अ पार्ट ऑफ लेबर लॉज। तो नेक्स्ट पार्ट जो हमारे एग्जाम के सिलेबस में है सोशल सिक्योरिटी। तो सोशल सिक्योरिटी में कई सारी स्कीम्स आ जाती हैं और इसके अलावा थ्योरीज भी आती हैं, कई सारी थ्योरीज पर्टिकुलरली पर्टेनिंग टू लेबर वेलफेयर। अब इसमें स्कीम्स पे भी काफी क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। जैसे हमारे टाइम में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पे क्वेश्चन आया था, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना पे क्वेश्चन आया था। तो करंट में अगर देखें तो सोशल सिक्योरिटी में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें ईपीएफओ का एक मेजर रोल है, और प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, अगेन ईपीएफओ का बड़ा रोल था इसमें। इस तरीके के जो स्कीम्स हैं पास्ट के, इस चीज के लिए आपको एक साल से बियॉन्ड जाके पास्ट के 3 या 4 साल में सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम्स आई हैं, मेनली जिसमें वर्कर्स या एम्प्लॉयर्स का रोल हो या इवन एम्प्लॉयज का रोल हो, ये स्कीम्स पे आपको ध्यान देना है। तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स करके आपको मटेरियल इजीली ऑनलाइन अवेलेबल होगा। दिस वे विल कंप्लीट द फर्स्ट राउंड ऑफ आवर प्रिपरेशन। अब आगे हमें प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रेंथन और स्ट्रॉन्ग करना है। अभी सिर्फ हमारा बेस रेडी हुआ है, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए हमें मॉक्स लगाने हैं। सिमिलरली सेकेंड राउंड में इकोनॉमी में भी फर्स्ट राउंड के रिवीजन के साथ साथ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 11th क्लास की एनसीईआरटी है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, उसको भी आप गो थ्रू करें तो उससे आपके कंसेप्ट और ज्यादा स्ट्रांग होंगे। फिर साइंस में 2017 वाले पेपर में 10 क्वेश्चंस आए थे। आपने फर्स्ट राउंड में लूसेंट पे थोड़ा पढ़ लिया है साइंस को, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंसेस या बायो, तीनों में से ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे। सिलेबस में ये जो टॉपिक्स सेपरेटली मेंशन्ड है, ये सब इंटरलिंक्ड भी हैं। अब जो टॉपिक सोशल सिक्योरिटी में है वो करंट में और डेवलपमेंटल इश्यू में भी आ सकता है, और इसी तरह जो टॉपिक पॉलिटी या इकोनॉमी में भी आता है वो भी करंट से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो प्रिपरेशन एक कॉम्प्रिहेंसिव होती है, और अगर आप इस पूरे एग्जाम के लिए जब प्रिपेयर करते हो तो ये प्रिपरेशन आपको बाकी अदर एग्जाम्स में भी, सिमिलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हेल्प ही करेगी। ऑल्सो दिस एग्जाम हैज बोथ फैक्चुअल एज वेल एज एनालिटिकल क्वेश्चंस। फैक्चुअल में बुक्स के ऑथर्स भी पूछ सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस इजी रखते भी हैं कि एटलीस्ट एवरीवन अटेम्प्ट्स अ बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस। वो सिविल सर्विसेज एग्जाम में भी होता है यूपीएससी के। देन देयर वर एनालिटिकल क्वेश्चंस एज वेल, जैसे 19th सेंचुरी में लेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रीजंस पूछे थे, फीचर्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पूछे थे। तो ये आपको डायरेक्टली रिटन शायद किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, पर आपने कोई भी स्टैंडर्ड बुक को रिफर किया है, एक बेसिक नॉलेज आपकी है किसी भी टॉपिक को लेके, तो आप आंसर एलिमिनेट करके और इंटेलिजेंट गेस से इन्फर कर सकते हैं। Also, we have to keep in mind that we have to attempt the maximum number of questions possible. और जैसे 120 क्वेश्चंस इसमें होंगे तो आई वुड सजेस्ट दैट वी अटेम्प्ट एटलीस्ट 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। उससे ऊपर अगर आप करते हैं अच्छा है, अगर आप इंटेलिजेंट गेस ले पा रहे हैं, वो आपकी मॉक्स की परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप जज कर पाएंगे कि आपके स्ट्राइक रेट क्या है। सो अब नंबर ऑफ आवर्स टू पुट इनटू दिस प्रिपरेशन डिपेंड्स एंटायरली अपॉन यू। rather even if you are working or not working, it's not the number of hours you put into it, it's the amount of yourself you put into those hours. तो वैसे भी हमको अपना बेस्ट एफर्ट देना है। अगर हम इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली हम और एग्जाम्स के लिए भी एस्पायर कर रहे होंगे। ये हमारा बचपन से ड्रीम जॉब तो रहा नहीं होगा कि हम ईपीएफओ में वैकेंसी आएगी, क्योंकि ये रेगुलर वैकेंसी है नहीं, 2017 में आई थी फिर अभी आ रही है। तो हम अगर बाकी एग्जाम्स के लिए भी एस्पायर कर रहे हैं तो ये एग्जाम भी, इसकी प्रिपरेशन बाकी एग्जाम्स में भी हेल्प करेगी। बाकी सुखार्थी न कुतो विद्या, विद्यार्थी न कुतो सुखम, यानी सुख की इच्छा करने वाले को विद्या प्राप्त नहीं होती एंड वाइस वर्सा। सो वी नीड टू पुट इन बेस्ट एफर्ट्स। और फिर भी अगर हमें एक रफ एस्टिमेशन लगाना हो तो एग्जाम अभी प्रपोज है 4 अक्टूबर को, जो हो सकता है करंट क्राइसिस के टाइम में और पोस्टपोन हो जाए, तो एटलीस्ट 3 to 4 hours a day वुड
suffice for any average student to get through in this exam. During the exam of our batch, that is in 2017, we didn't have much of study material by reputed institutes. But as of now, many reputed institutes have come up with decent study material and mock tests as well. अब इसमें EduTap का मैंने मटेरियल थोड़ा देखा था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और उसमें उन्होंने जो टेस्ट सीरीज भी प्लान आउट की है, तो 100 सेक्शनल टेस्ट हैं विच अपीयर टू बी गुड अमाउंट एंड फिर उनके फुल लेंथ टेस्ट वगैरह भी हैं. तो EduTap का मटेरियल भी रिफर किया जा सकता है अपार्ट फ्रॉम एनी अदर स्टैंडर्ड सोर्सेज दैट यू हैव. फाइनली मूविंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ अ वीडियो, द इंटरव्यू. तो इंटरव्यू का वेटेज 2020 वाले एग्जाम में 25% ही है, जबकि 2017 वाले एग्जाम में इसका वेटेज 50% था. तो इस 25% वेटेज वाले इंटरव्यू में हम लोगों के डाउट्स होते हैं कि क्या इंटरव्यू पर्सनालिटी बेस्ड होगा, नॉलेज का टेस्ट होता है, और क्या इसमें सिलेबस के क्वेश्चन पे पूछे जाएंगे, क्या मेरी ग्रेजुएशन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. तो आई वुड से कि as many people have said it earlier कि interview is a personality test and it is not a test of your knowledge because it has already been tested in the written exam. But here I would disagree and differ because your personality depends upon your knowledge. So it is a personality test but it is also a test of your knowledge, and information is different from knowledge. You might not know a lot of things but उससे ये मतलब नहीं है कि आपकी नॉलेज कम है. और जहां तक सिलेबस या फिर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट की बात है, तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप उस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आपसे आपके ग्रेजुएशन या सिलेबस से पूछा गया है, अगर आपको आता है तो आप कितने क्लियरली उसको आंसर देते हो, नहीं आता है तो वो चीज आप कैसे इन्फर करके आंसर दे पाते हो, अगर दे पाते हो तो, और अगर आपको मना करना है तो आप कितना प्रोफेशनली या फिर कितने अच्छे तरीके से उस चीज को डिनाई या डिसएग्री कर पाते हो कि आई एम सॉरी सर और मैम, आई हैव रेड दिस बट एज ऑफ नाउ आई एम अनेबल टू रिकलेक्ट द आंसर. ये मोस्टली फैक्चुअल क्वेश्चंस में हो सकता है, लेकिन अगर एनालिटिकल क्वेश्चंस है उसमें अगर आप ऐसा आंसर देते हो तो इट शोज योर पर्सनैलिटी. तो यही है कि इंटरव्यू इज अ टेस्ट ऑफ बोथ नॉलेज एंड पर्सनैलिटी. एंड इसमें हम लोगों को हेजिटेंट नहीं होना है कि मैंने कुछ टॉपिक पढ़ा नहीं, करंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो पैनल होता है उसमें यूपीएससी के ही मेंबर्स होते हैं या फिर एक्स मेंबर्स हो सकते हैं यूपीएससी के. तो दे माइट आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स. लाइक आई टेल माय एग्जांपल, माय इंटरव्यू वाज टेकन बाय श्री मनबीर सिंह. ही इज एन एक्स आईएफएस ऑफिसर. तो मनबीर सिंह जी का जो पैनल था, उन्होंने येमेन क्राइसिस के बारे में भी डिस्कस किया था, इजराइल की कंडीशन के बारे में डिस्कस किया था. देन वन ऑफ द मेंबर्स डिस्कस्ड अबाउट डिजिटल इंडिया, जीएसटी, जो उस टाइम न्यूज में चल रहा था वो डिस्कस हुआ. फिर जैसा आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाएगा रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद, उसमें जो आपकी डिटेल्स मेंशन है उसके बारे में कुछ भी डिस्कशन हो सकता है, जैसे योर होम टाउन, योर स्कूल, और मे बी द सिटी और स्टेट फ्रॉम वेयर यू ग्रेजुएटेड, आपने जहाँ जॉब की. तो दे ट्राई टू एनालाइज हाउ ऑब्जर्वेटिव और एनालिटिकल यू आर, हाउ स्मार्टली यू डील विद व्हाट यू नो एंड ऑल्सो व्हाट यू डोंट नो. तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपना डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डैफ बहुत समझदारी से सोच समझ के भरें. तो डैफ में जो भी चीजें आप फिल करते हैं, आपकी हॉबीज के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में, एक्स्ट्रा करिकुलर्स के बारे में, स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में जो अचीवमेंट्स हैं, तो उन सब के बारे में आपको एक इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि कोई आपको ये ना बोले कि आप एब्सेंट माइंडेड हैं या फिर आपको इतनी बेसिक चीजें भी नहीं पता है. तो इंटरव्यू की बेस्ट प्रिपरेशन होती है विद योर फ्रेंड्स. अपने फ्रेंड्स का पैनल बनाकर उनको अपना डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म दे दीजिए और वो आपके डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के हर एस्पेक्ट पे आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे एंड योर फ्रेंड्स नो यू द बेस्ट. उस केस में ये चीज जज होती है इंटरव्यू में कि आप जो बोल रहे हो उस चीज में आपकी कितनी डेप्थ है. फॉर इंस्टेंस, इफ यू से यू हैव इंटरेस्ट इन प्रैक्टिसिंग योगा, तो योगा की हिस्ट्री आपको पता हो,
डिफरेंट योगिक पोस्चर्स के बारे में पता हो, और मे बी एनालिटिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि हाउ विल दिस हैबिट या फिर दिस इंटरेस्ट हॉबी ऑफ योर्स विल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन. So what is important in interview is that whatever you write in your DAF is genuine or justified. तो आप फ्लूक ना करो वहां पे, क्योंकि अगर आप कुछ ऐसी चीजें लिखते हो कि आई हैव इंटरेस्ट इन रीडिंग अबाउट एंशियंट हिस्ट्री, और वहां पे वो एंशियंट हिस्ट्री पे कुछ भी क्वेश्चंस पूछ लेंगे, तो यू माइट नॉट बी इन अ कंफर्टेबल पोजीशन टू आंसर. तो DAF पढ़ते में आपको सारा ध्यान देना है कि क्या चीज आप जस्टिफाई कर पाओगे, क्या चीज के ऊपर आपकी कमांड है. सो फाइनली कंप्लीटिंग विद broad discussion about the entire exam, the preparation strategy and interview. I think now what is required is one's own effort, dedication and perseverance. In the end, I would say that EPFO is a good organization to work with. In the current corona pandemic crisis, EPFO is among the essential services as per the Ministry of Home Affairs order. And I'm glad to tell you that our office is continuously working and we are going to office on a daily basis because एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से भी EPFO लिंक्ड है, और कोविड को लेके एक नया प्रोविजन भी ऐड हुआ है EPFO के एक्ट में. सो EPFO में जो डाइवर्स नेचर ऑफ वर्क है, मैंने जैसे शुरू में बताया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज से भी हमको डील करना होता है, और नेचर ऑफ वर्क भी अगर आप ऑफिस में हो तो आपको बहुत ही डिफरेंट टाइप के काम भी मिलते हैं, और इसमें आपको अपने आप को एक्सप्लोर करने के काफी ऑप्शंस मिलते हैं. और द बेस्ट थिंग इज इफ यू आर एन एस्पिरेंट, तो यू गेट इनफ टाइम टू स्टडी एंड गेट इनटू अ बेटर ग्रुप ए सर्विस. बाकी हम लोगों का बैच भी है आप लोगों को हेल्प और गाइड करने के लिए, एंड we'll be ourselves very happy and proud to have a new batch of direct recruit enforcement officers. Thank you.